Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, as you can see, I have opened this PDF of syllabus. We have completed this chapter, Cold War Era and Non-Aligned Movement. And we completed 2 chapters in part A. हमने 2 chapters complete कर लिए हैं part A में से contemporary world politics के अंदर. Part B के अंदर भी हमने 2 chapter complete कर लिए, challenges of nation building and planning and development. ठीक है? So today we are going to discuss your problems related to the Cold War era and non-alignment movement. Okay? Clear है? Yes, ma'am. Okay, but before going ahead, we should check this. Okay. Okay, I'm going to share the. Okay. Are you able to see this screen? Yes, ma'am. Okay, before starting the takeaway notes of this chapter, I would like to ask you if you have any problem related to this Cold War era chapter and non-alignment, you can ask me. अगर आपको No, chapter ma'am. No, ma'am. Okay, so let's start our takeaway notes of this chapter. First है Cuban Missile Crisis. Cuba was an ally of the Soviet Union and received diplomatic and financial aid from it. क्यूबा जो है सोवियत यूनियन के अलाई था, सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था और इसको काफी मदद मिलती थी उससे, डिप्लोमेटिक हो या फाइनेंशियल एड हो, दोनों ही तरह की चीजें इसको वो प्रोवाइड कराता था, यानी कि यूएसएसआर. In April 1961, the leaders of the USSR were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow its president Fidel Castro. 1961 अप्रैल के अंदर यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उनको चिंता होने लगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए जो है वो घुसपैठ करेगा इस क्यूबा के अंदर, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको वहां से वो निकाल सकेगा. प्रेसिडेंट का नाम है फिडेल कैस्ट्रो. In 1962, the leaders of the Soviet Union, Nikita Khrushchev, placed nuclear missiles in Cuba for converting it into a Russian base. 1962 के अंदर जो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के लीडर्स हैं, उन्होंने जो बेसिक लीडर का नाम दिया गया है निकिता क्रुशेव, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है, न्यूक्लियर मिसाइलें जो है वो वहां लगा दी थी क्यूबा में, उसको एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया था. ये जो ऊपर इनको चिंता जता रही थी उसी के तहत इन्होंने एक्शन लिया था. 3 weeks later, Americans became aware of it. The US President John F. Kennedy and his advisors tried to find a solution to avoid full-scale nuclear war, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. 3 हफ्ते बाद अमेरिकन को इस चीज के बारे में पता लगता है और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उस समय में जॉन एफ कैनेडी और उनके जितने भी एडवाइजर्स थे, उन्होंने हर भरसक कोशिश करी कि किसी भी तरीके से फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर जो है उसको हम अवॉइड करें, और पर वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि भाई ये क्रुशेव ने जो भी मिसाइल्स लगाई हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लगाए, ये तो क्यूबा से इनको हटाने पड़ेंगे. Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR. अब वहां के प्रेसिडेंट जो थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स भेज दिए और उनको बोला कि आप सोवियत शिप्स जो इतने भी क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं उनका रास्ता रोको, वार्निंग की तरह. This clash between the US and the USSR came to be known as the Cuban Missile Crisis. ये जो क्लैश हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ये नाम इसको एक नाम दिया गया है जो कि है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. इट मेड द होल वर्ल्ड नर्वस. इससे पूरी दुनिया जो है पूरी टेंशन में आ गई थी. The Cuban Missile Crisis was a high point which came to be known as the Cold War. Cuban Missile Crisis जो है वो एक हाई पॉइंट था उस चीज का जो आगे जाकर के कोल्ड वॉर की तरह आपको मालूम पड़ेगी. It refers to the competition, the tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union. ये कंपटीशन की तरह देखा जा सकता है, टेंशन की तरह देखा जा सकता है, और इसमें कई सारे कॉन्फ्रंटेशंस यानी उन्होंने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया है, यूएसए ने और सोवियत यूनियन ने यानी कि यूएसएसआर ने. इन पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. No. ओके. फिर है कोल्ड वॉर.
The Cold War was the first war of ideologies. अब ये जो लड़ाई थी कोल्ड वॉर, ये क्या था? ये बेसिकली जो विचारधाराएं होती हैं उसका वॉर था. The US followed the ideology of liberal democracy and capitalism, while the USSR backed the ideology of socialism and communism. USA फॉलो कर रहा था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए. और वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, यानी कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए और कम्युनिज्म होना चाहिए, यानी कि वन पार्टी रूल होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. तो ये दोनों ही जो है अपने आप में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर के पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे, कंट्रीज थी, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी और अपना जो ग्रुप है, अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी. The Second World War 1939 to 1945 came to an end with the defeat of the Axis powers led by the Germany, Italy and Japan by the Allied forces led by the US and Soviet Union, Britain and France. Second World War खत्म जो चला था 1939 से 45 के बीच में, वो खत्म हुआ जब एक्सिस पावर्स जो थी, जो जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा चलाई जा रही थी, और जो यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चलाई जा रही थी, इनकी हार हुई थी जर्मनी, इटली और जापान की. ठीक है, इन लोगों यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा. तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, और इससे शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 atomic bombs in Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म तब हुआ था जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 के अंदर, और इससे जापान को सरेंडर करना पड़ा. This decision of US was both criticized and supported. ये जो बॉम्ब गिराने का डिसीजन था, इससे दोनों ही चीजें हुई. यूएसए की तारीफ भी हुई और उसको सपोर्ट मिला, और साथ ही साथ उसकी निंदा भी हुई. But the consequences of the end of the Second World War was the rise of the two new powers on the global stage. अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद में 2 सुपर पावर्स जो हैं वो ग्लोबल स्टेज पर उभर के आ रही थी. The United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on Earth. United States और सोवियत यूनियन दोनों ही इतनी अच्छी ग्रेटेस्ट पावर्स की तरह निकल के आई वर्ल्ड के अंदर कि उनके पास में इतनी कैपेसिटी हो गई थी कि वो किसी पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी अर्थ पर कुछ भी हो रहा होता था तो वो अपना प्रभाव उस पर छोड़ती थी. ठीक है, इन्फ्लुएंस करती थी. But the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. It was due to the logic of deterrence. अब कोल्ड वॉर जो है, भले ही वो इतना ज्यादा इंटेंस था, डीप था, ये बहुत दुश्मनी जो थी इनके बीच की काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके बावजूद भी ये कोल्ड ही रहा और हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में नहीं हुआ. और एक लॉजिक ऑफ डेटरेंस वाली चीज जो है वो ये लोग समझते थे. अब लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब होता है जब दोनों ही साइड्स के पास में कैपेसिटी हो कि वो एक दूसरे के अटैक पर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे सकें, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जाएगा कि दोनों ही साइड जो हैं, जिन्होंने भी शुरू करा होगा ये वॉर, वो दोनों ही साइड्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी. इसे कहते हैं द लॉजिक ऑफ डेटरेंस. मींस व्हेन बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, कि आगे जाकर के दोबारा कोई वॉर इनिशिएट नहीं कर पाए इस तरह का डिस्ट्रक्शन. The two superpowers and their allies were expected to behave as rational and responsible actors. दोनों ही superpowers और उनके जो allies supporters थे वो इस तरीके में responsible actor की तरह काम कर रहे थे, responsible person की तरह काम कर रहे थे, और साथ ही साथ rational थे वो, यानी चीजों को लेकर के उनको समझते कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है. कोल्ड वॉर के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Then we have the emergence of two power blocks. The two superpowers, that is the USA and USSR, wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world. Hence, they decided to take help of the smaller countries. दोनों ही superpowers, USA और USSR, चाहती थी कि अपना जो उनका घेरा है, यानी कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो दुनिया के बहुत अलग अलग हिस्सों में भी फैले. ठीक है, वो बड़ा हो, एक्सपेंड करे, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे कि स्मॉल कंट्रीज को अपने सपोर्ट में ले ले, अपने साथ में ले ले. Hence, they decided to take help of the smaller countries. उन्होंने मदद करने की, मतलब उनकी हेल्प लेने की कोशिश करी. These smaller states got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals and mostly regional neighbors. अब ये स्मॉलर कंट्रीज की जो ये मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने साथ में इनकी एक ऐसी डील थी कि भाई हम आपको
प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वेपन्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको आर्थिक मदद पहुंचाएंगे, आपके जितने भी अगेंस्ट हैं, लोकल राइवल्स हैं, आपके लोकल दुश्मन हैं या रीजनल नेबर्स से आपकी दुश्मनी है, उनके अगेंस्ट में जाके हम आपकी हेल्प करेंगे। ये उनका सुपर पावर्स का ये मोटो था। The first division took place in Europe. Most countries of Western Europe sided with the US and thus came to be known as the Western Alliance. सारी जो फर्स्ट डिवीजन हुआ था यूरोप का, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी यूरोप की, उनका था, और यूएसए ने उसको अपने सपोर्ट में ले लिया था, इसीलिए उसको वेस्टर्न अलायंस कहा जाता है। कंट्रीज जो थी ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने सोवियत कैंप ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए उनको ईस्टर्न अलायंस कहा जाता है। वेस्टर्न अलायंस जो है वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए चल रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949 एंड विद 12 स्टेट्स। अब जो वेस्टर्न अलायंस था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, फॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या था? नाटो। इसके अंदर कितने थे? 12 स्टेट्स थे। और ये कब बना था? अप्रैल 1949 के अंदर। The NATO declared that the armed attack on any one of them in Europe और नॉर्थ अमेरिका would be regarded as an attack on all of them। अब ये जो 12 स्टेट्स इसके साथ में मिली हुई थी नाटो के अंदर, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर हम पे किसी एक पर भी किसी यूरोप किसी और ने हमला किया, तो हम मानेंगे कि हम सब पे हमला, और उन सब मिल करके उस अटैक का जवाब देंगे। The Eastern Alliance, also known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was established in 1955. Its principal function was to counter NATO's forces in Europe. अब जो ईस्टर्न अलायंस था वो भी वॉर्सो पैक्ट की तरह जाना जाता था, जैसे ये लोग नाटो की तरह जाने जाते थे वेस्टर्न अलायंस वाले। इन्होंने स्टैब्लिश किया था इस चीज को 1955 के अंदर, और इनका मेन प्रिंसिपल फंक्शन यही था कि नाटो ने जो भी एक्शन लेना है उसका मुंह तोड़ जवाब हमने देना है, वॉर्सो पैक्ट देगा यूरोप के अंदर। In East and the Southeast Asia and in West Asia, Middle East and the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization। तो बाकी के इधर उधर की जो बची हुई चीजें थी, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब ने भी एक अपना अलायंस सिस्टम बनाया। इनके साथ में अमेरिका ने मिलकर एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसका नाम था सीटो और सेंटो। Many newly independent countries were worried of losing their freedom. Cracks and splits within the alliances were quick to appear. कई सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है उनको लग रहा था कि वो अपनी आजादी खो देंगी, और कई सारे उनको क्रैक्स एंड स्प्लिट्स दिखने लगे थे इस अलायंस सिस्टम के अंदर। ये जो इन्होंने सपोर्ट सिस्टम शुरू करा था, इसके अंदर उनको काफी सारी दिक्कतें दिख रही थी। फायदे भी दिख रहे थे तो नुकसान भी दिख रहे थे। कम्युनिस्ट चाइना क्वेरल्ड विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s। कम्युनिस्ट चाइना जो उसकी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी यूएसएसआर के साथ में। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ था वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। The smaller countries were of more help to superpower because they were the means to gain vital resources such as an oil, minerals, location to spy each other and to launch weapons। अब ये smaller countries कैसे फायदा पहुंचा रही थी सुपर पावर्स को? उनका अलग वो रीजन था कि उनके पास में अच्छे वाइटल रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, और साथ साथ उनकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि ये दूसरे सुपर पावर के ऊपर जाकर के स्पाई कर सकते थे, उस पर नजर रख सकते थे, और वेपन्स भी वो लॉन्च कर सकते थे वहां पे अपना बेस सेटअप करके। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? द इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर ब्लॉक्स? No, ma'am, no No, ma'am. problem. अब है the arenas of the Cold War। Arenas of the Cold War refers to the areas where crisis and war occurred on the threatened to occur between the land systems but did not cross certain limits। अब ये arenas क्या थे? कौन से areas थे जो Cold War के अंदर इन्वॉल्व थे? वो एरियाज थे जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, क्राइसिस था, और एक दूसरे को खतरा भी कर रखा था, धमका भी रखा था कि हाँ यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, लेकिन आगे जाकर के इन्होंने किसी ने भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी। द कोल्ड वॉर वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेवरल शूटिंग वॉर्स। इसके कारण, कोल्ड वॉर के कारण ही कई सारे शूटिंग वॉर्स भी हुए, लेकिन वो स्मॉल स्केल वॉर्स थे। The two superpowers were poised for direct encounter in Korea, Berlin, the Congo, and in several other parts। अब ये जो छोटे छोटे शूटिंग वॉर्स हुए हैं, वो हुए थे बेसिकली कोरिया, बर्लिन और कॉन्गो के अंदर, और भी कुछ हिस्सों में। ये बेसिकली 3 नाम जो है आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से साल में कहाँ तक हुए हैं वो भी बताना है। जवाहरलाल नेहरू was one of the key leader of NAM, played a key role in mediating between the two Koreas in the Congo crisis, and the UN Secretary General played a key mediatory role। अब जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर थे NAM के। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दोनों कोरियाज के बारे में बात कराना हो, कॉन्गो के बीच में बात कराना हो, और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यूएसए और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो कोलैबोरेट करेंगे, लिमिट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे अपने कुछ न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो है कम करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना जो आर्म्स और एमिनेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था इसलिए।
The two sides signed three significant agreements within a decade. These were, अब इन्होंने जो ये चीज करी थी important, वो उन्होंने तीन चीजों के तहत करी थी, मतलब तीन इन्होंने ट्रीटी साइन करी थी. वो कौन सी थी? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, और एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABMT. ये आपको याद रखनी है ये तीनों की. भाई हम लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के अंदर ये लिमिटाइजेशन करेंगे कि ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि ये ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अब ज्यादा इकट्ठे नहीं करेंगे. एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का मतलब भी यही है कि अग्रेसिव तरीके से कोई किसी के ऊपर मिसाइल जो है वो नहीं लॉन्च करेगा. समझ में आया रिनास ऑफ द कोल्ड वॉर? अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. Then we have changed to bipolarity. Non-aligned movement, NAM offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America third option, that is not to join any of the alliances. NAM जो है उसको इसलिए फ्रेम किया गया था कि यहाँ पे जितनी भी नई वो कंट्रीज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जिन्हें आजादी मिली है कॉलोनियल रूल से, उनके पास में एक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए कि वो दोनों ही अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करें. NAM was founded by three leaders: Yugoslavia, Joseph Broz Tito; India's Jawaharlal Nehru; Egypt leader Gamal Abdel Nasser. अब NAM जो है उसके तीन लीडर्स थे, नाम दे रखे हैं इन जगहों के साथ में. इनके द्वारा फाउंड किया गया था ये. इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा ये भी स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे. इसलिए फर्स्ट NAM समिट जो हुआ था वो हुआ था 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर. ये चीजें याद रखनी है आपको. नॉन अलाइनमेंट neither means isolationism or neutrality. It played a role in mediating between the two rival alliances. इसका मतलब ये नहीं था NAM का कि ये आइसोलेट कर लेंगे या न्यूट्रल रहेंगे, बल्कि इसका मतलब ये था कि दोनों राइवल अलायंसेस के बीच में समझाइश से बातचीत करके हम चीजों को सॉर्ट करेंगे. Then we have new international economic order. The challenge of the newly decolonized countries was to become more developed economically and to lift their people out of poverty. The idea of a new international economic order, NEO, originated with this realization. अब जो अभी रिसेंटली आजाद हुई थी जो कंट्रीज, उनके सामने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. उनको डेवलप होना था इकोनॉमिकली और अपने लोगों की गरीबी को हटाना था. इसीलिए यहाँ पर नियो का फॉर्मेशन हुआ. ये ओरिजिनेट ही तब हुआ जब इन लोगों को ऊपर की ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें डीकोलोनाइज कंट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी ट्रेड और डेवलपमेंट पे, उन्होंने एक नई रिपोर्ट तैयार करी 1972 के अंदर और उसका टाइटल ही दिया था Towards a New Trade Policy for Development. डेवलपमेंट के लिए नई व्यापार करने की पॉलिसी बनाना, जिसमें ये सारी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज थी उनकी मदद करेंगे. The nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues. As a result, NAM became an economic pressure group. अब ये जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. इसी के कारण NAM जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करने लगा था. समझ में आया ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और चैलेंज टू बाइपोलैरिटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. फिर है इंडिया इन द कोल्ड वॉर. इंडिया जो है वो टू वे पॉलिसी लेकर के चल रहा था कोल्ड वॉर को लेकर के. इंडिया फॉलोड अ टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर. इट डिड नॉट जॉइन एनी ऑफ द अलायंसेस, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग द पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस. अब टू वे पॉलिसी जो थी वो ये थी, पहली तो ये कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करा था. दूसरी चीज, डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो थी, जो भी किसी भी अलायंस का हिस्सा बनती थी, उसके लिए आवाज उठाता था. The policy of India was not fleeing away, but was in favor of actively intervening in the world affairs to soften Cold War rivalries. इसका पॉलिसी जो थी इंडिया की वो ये नहीं थी कि हम वो भाग जाएगा कहीं से भी, बल्कि उसकी पॉलिसी ये थी कि वो इंटरफेयर करेगा वर्ल्ड अफेयर्स में और कोल्ड वॉर के जो राइवल्स हैं उनके बीच में सॉफ्ट करेगा चीजें, जिनकी सॉफ्टन करेगा चीजें, यानी कि उनके बीच में समझाइश करके उनको, उनकी दुश्मनी को कम करेगा. द नॉन अलाइनमेंट गेव इंडिया द पावर टू टेक द इंटरनेशनल डिसीजंस एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर. नॉन अलाइनमेंट जो है उसने इंडिया को पावरफुल बनाया, इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेने के लिए उसको चीजें प्रोवाइड कराई, साथ ही साथ दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बिठाने की भी इसको पावर दी थी. India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts, but still it has become both as an international movement and a core of India's foreign policy. इंडिया के लिए ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, जो भी इसने काम किए इसके अंदर, वो क्रिटिसाइज भी होते थे और कई बार उसको क्रिटिसिज्म भी मिला है, लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनल मूवमेंट जो है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता रहा और इसकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी इसी पे बेस्ड है. समझ में आया इंडिया इन द कोल्ड वॉर? किसी को कोई दिक्कत?
No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ये अपलोड कर दिए गए हैं आपकी स्कूल ऐप पे। आपको ये मिल जाएंगे नोट्स भी, और इसके नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मेंशन कर दिए हैं, दोनों ही चीजें। ये बाकी के पॉइंट्स जो है हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी मंडे को उसमें डिस्कस करेंगे।